Good morning, students. Today we are going to start our next topic, that is industrial sector on the eve of independence. First of all is systematic deindustrialization. It is a term that describes the status of industrial sector during the British rule, and it implies two things. First one is decay of the world famous traditional handicrafts industry owing to discriminatory policies of the British government. फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे वो ये थे कि जो इंडिया का फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट था दैट वाज ruined by the British discriminatory policies. Second is bleak growth of the modern industry owing to the lack of investment opportunities. जो growth of modern industry थी that was very low because there is a lack of investment opportunities. Next is decay of handicrafts. Prior to the British rule, handicrafts in India enjoyed the worldwide reputation of excellence and quality, but the British Raj contributed to their decay. British Raj से पहले जो हमारे handicrafts थे, that was enjoyed worldwide reputation. जो उनकी quality थी, that was very good. बट जो ब्रिटिश राज था उन्होंने पूरा कंट्रीब्यूट किया उनको ख़त्म करने के लिए, जो कि उनकी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ थी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज़, उसने उनको और ज़्यादा हेल्प की जो हमारे हैंडीक्राफ्ट थे उनको डिके करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल इज डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट. द ब्रिटिश रूल इन इंडिया coincided with the industrial revolution in Britain. The Britain found India as the best source of raw material as well as the best market for the industrial products. Accordingly, a discriminatory tariff policy was persuaded. It allowed tariff-free export of raw material from India and tariff-free imports of British industrial products into India. Now, what will happen? जो ब्रिटिश रूल था उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो थी उसमें की ब्रिटेन में विद द हेल्प ऑफ इंडिया. व्हाट दे हैव डन, उन्होंने इंडिया को एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल कंसीडर किया और जिसकी वजह से उन्होंने कुछ डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ जो थी फॉर्मुलेट की, जिसमें कि टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल का इंडिया से किया गया ब्रिटेन में एंड टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इनटू इंडिया. जिससे कि क्या हुआ, जो ब्रिटिश प्रोडक्ट थे स्टार्टेड गेनिंग द इंडियन मार्केट एंड द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट स्टार्टेड लूजिंग देयर डोमेस्टिक एज वेल एज द फॉरेन मार्केट. इससे क्या हुआ, अब जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स थे उनका जो मार्केट था इंडियन मार्केट एज वेल एज सो एज अ कॉन्सिक्वेंसेस while the British products start gaining the Indian market and the Indian handicraft products start losing their domestic as well as the foreign market. तो इससे क्या consequences हुए, जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स थे उनकी जो मार्केट थी वो इंडिया में भी इस्टेब्लिश हो गई एज वेल एज फॉरेन में भी, एंड इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था उसने अपनी जो मार्केट थी वो लूज़ कर दी, डोमेस्टिक मार्केट भी और एज वेल एज द फॉरेन. So that leads to the decay of handicrafts. Next is disappearance of the princely courts. Prior to the British rule, Nawabs, Rajas, princes and emperors ruled different part of the country. They used to patronize the handicrafts because of the Indian handicraft industry had acquired international reputation. So the beginning of the British rule implied the end of princely courts. Consequently, द हैंडीक्राफ्ट स्टार्टिंग डिकेइंग. अब इसमें क्या था, जब ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश किया गया इंडिया में तो जो नवाब्स, राजास, प्रिंसेस या एम्परर्स थे जो कि अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में रूलिंग, तो पैटर्नाइज का मतलब क्या है, पैटर्नाइज का मतलब है फाइनेंशियल हेल्प करना हैंडीक्राफ्ट्स को. और उनकी जो, क्योंकि हमारी जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स थी उनकी इंटरनेशनल रेपुटेशन थी, तो उसको बनाए रखने के लिए वो उनको जो पर्टिकुलर पर्सन्स थे उनकी फाइनेंशियली हेल्प करते थे. बट ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये जो हेल्प थी इट वाज
डिक्लाइनिंग। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था हमारी हैंडीक्राफ्ट्स के डिकेइंग का। कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड प्रोडक्ट्स। Machine made products from Britain were low cost products and gave a stiff competition to the handicraft product in India. अब जो ब्रिटेन से गुड्स बन के आ रहे थे देवर ऑफ लो कॉस्ट, क्योंकि देवर मशीन मेड गुड्स, और जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स थे उनको वो काफ़ी कंपटीशन प्रोवाइड कर रहे थे। मेड प्रोडक्ट्स आर एक्सेल्ड मार्केट हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट इन प्रिसीजन एंड क्वालिटी, क्योंकि जो मशीन मेड गुड्स थे उनकी जो क्वालिटी थी एज़ कम्पेयर टू द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर मोर, सो जिसकी वजह से कंपटीशन फेस होने की वजह से जो क्राफ्टमैन हैव टू शट देयर एंटरप्राइज। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। अब क्या था, धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स का कल्चर था वो इंडिया में भी अडॉप्ट होना स्टार्ट हो गया था। जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल था और जो लोगों की डिमांड का पैटर्न था वो भी चेंज हो रहा था। नाउ द इंडियंस स्टार्टेड टू फेवर ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। तो इंडियंस ने भी स्टार्ट कर दिया था ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को फेवर करना। तो इस वजह से भी जो हमारी इंडियन मार्केट थी वो धीरे धीरे कम होती गई एंड अल्टीमेटली पेरिस्ड, मतलब ख़त्म ही हो गई। नेक्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवेज़ इन इंडिया। जैसे जैसे रेलवेज़ की इंट्रोडक्शन की गई वैसे वैसे जो साइज़ ऑफ द मार्केट था ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का वो बढ़ता गया एंड while it started shrinking for the high cost Indian products। और वैसे ही हमारे जो इंडियन प्रोडक्शंस के हाई कॉस्ट प्रोडक्ट्स थे वो धीरे धीरे कम होते गए एंड इट लीड्स टू द डिके ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। सो दीज आर द सम रीजंस ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो डिके था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जो फेवर स्टार्ट हो गया था ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का, उनकी वजह से जो इंडिया की मार्केट थी इंडस्ट्री की वो उसने अपना डोमेस्टिक मार्केट लूज़ कर दिया। धीरे धीरे लूज़ करते हुए इट अल्टीमेटली पेरिस्ड और पूरी तरह से ख़त्म हो गई जो इंडियन प्रोडक्ट्स की मार्केट विद इन इंडिया। इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवेज़ इन इंडिया। इंडिया में रेलवेज़ की इंट्रोडक्शन के साथ साथ जो साइज़ ऑफ द मार्केट था इंडियन प्रोडक्ट्स का इट स्टार्ट श्रिंकिंग एंड जो साइज़ था ब्रिटिश प्रोडक्ट का वो धीरे धीरे एक्सपैंड होता गया। तो जो ये इसने भी जो था एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारी इंडिया की इंडस्ट्रियल सेक्टर को हेस्टेन एंड वीकेंड करने में। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस ऑफ डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स विद इन इंडिया। तो जो फेवर स्टार्ट हो गया था ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का, उनकी वजह से जो इंडिया की मार्केट थी इंडस्ट्री की वो उसने अपना डोमेस्टिक मार्केट लूज़ कर दिया। धीरे धीरे लूज़ करते हुए इट अल्टीमेटली पेरिस्ड और पूरी तरह से ख़त्म हो गई जो इंडियन प्रोडक्ट्स की मार्केट विद इन इंडिया। इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवेज़ इन इंडिया। इंडिया में रेलवेज़ की इंट्रोडक्शन के साथ साथ जो साइज़ ऑफ द मार्केट था इंडियन प्रोडक्ट्स का इट स्टार्ट श्रिंकिंग एंड जो साइज़ था ब्रिटिश प्रोडक्ट का वो धीरे धीरे एक्सपैंड होता गया। तो जो ये इसने भी जो था एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारी इंडिया की इंडस्ट्रियल सेक्टर को हेस्टेन एंड वीकेंड करने में। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस ऑफ डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स विद इन इंडिया।